Hi friends, today's lecture will be on sources of energy. In this, we will discuss various sources of energy, characteristics of a good source of energy and a good fuel. This will be followed by top 3 important MCQs on this topic. So कोई भी काम करने के लिए हमें energy चाहिए. So we need energy to write, to make this video. So ये जो energy है ये कहाँ से आती है? What is our source of energy? Yes, it is the food which we eat. So this food is a source of energy for humans and animals. ये हमारे लिए एनर्जी सोर्स हैं जिससे हम काम कर पाते हैं. बट इन दिस वीडियो हम जानेंगे वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिनसे हमें रोशनी मिलती है, लाइट मिलती हैं, जिनसे गाड़ियाँ चलती हैं या ट्रेन चलती हैं, बाकी मशीनें चलती हैं फैक्ट्रीज़ में. दे नीड एनर्जी टू मूव और टू डू एनी फंक्शन. हाउ टू डिफाइन a source of energy? Source of energy is one which can provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. Source of energy हम इससे कहते हैं जो हमें adequate energy दे in a convenient form, in a useful form, और काफ़ी देर के लिए, बहुत टाइम के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करे. उससे हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, source of energy or types of energy. These are two different things. Don't get confused. For example, coal is a source of energy. ये जो coal है ये एक एनर्जी का सोर्स है, बट इसमें जो एनर्जी होती हैं वो होती हैं केमिकल एनर्जी. इन दिस देयर इज़ ए केमिकल एनर्जी. सो जब हम कोल को जलाते हैं, सो ये जो केमिकल एनर्जी ये होती हैं कन्वर्ट इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. जब हम कोल को जलाते हैं हमें हीट भी मिलती है और हमें रोशनी भी मिलती है, लाइट भी मिलती है. सिमिलरली जैसे कैंडल हम जलाते हैं, कैंडल भी बना हुआ होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का. सो दैट इज़ आल्सो अ केमिकल एनर्जी. सो जब हम कैंडल को जलाते हैं उससे भी हमें लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है और हीट मिलती है. सो यहाँ पे क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट और लाइट एनर्जी में, विच वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Classification of sources of energy. Sources of energy are classified based on long-term availability and based on the traditional use. Based on the long-term availability, there are two types of sources of energy: non-renewable energy sources and renewable energy sources. Based on the traditional use, there are conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. Non-renewable energy sources and renewable energy sources. Non-renewable are present in limited quantity in nature, but renewable are present in unlimited quantity in nature. Non-renewable cannot be renewed, so they can get exhausted, they can get finished. ये ख़त्म भी हो सकते हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं exhaustible resources और exhaustible source of energy. Renewable हम फिर से भी यूज़ कर सकते हैं, we can renew them, they cannot get exhausted. So हम इनको कह सकते हैं inexhaustible रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल में एग्जांपल्स हैं कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स. फॉर एग्जांपल अगर हम कोल एक बार जलाएंगे सो हम उसको फिर से नहीं जला सकते हैं. यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं रिन्यूएबल में, यहाँ पे हैं विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी जो हमें वाटर से मिलती है, फ्लोइंग वाटर, और सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती हैं. सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. Wood is also a renewable energy source, but if we cut trees or forests at a faster rate, then it will cause problems. But wood is considered as a renewable energy source. Now, based on traditional use, there are conventional source of energy and non-conventional source of energy. Conventional source हम उनको कहते हैं जो हम पुराने ज़माने से यूज़ करते आए हैं, और non-conventional जो हाल ही में डेवलप किए गए हैं. So these are new. And these are older. Conventional sources are older. Those which are used extensively and meet a major portion of our energy requirements, these are called conventional source of energy. जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारी नीड्स ज़्यादातर इनसे फुलफिल होती हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से. एग्जाम्पल्स हैं इसमें फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसमें कोल हैं, पेट्रोल, नेचुरल गैस,
और हाइड्रो एनर्जी जो हमें फ्लोइंग वाटर से मिलती है, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, बायोमास एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर also fall in this category as these are being used since ancient times. जो बायोमास और विंड एनर्जी हैं ये भी कन्वेंशनल सोर्स में आते हैं क्योंकि हम इनको यूज़ करते आए हैं काफ़ी टाइम से अब. So these are also known as traditional sources because we are using them for a long time now. These are called traditional sources. And non-conventional sources are those sources which are not used extensively. जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं एज द कन्वेंशनल वन, जितना हम कन्वेंशनल सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं. एंड मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली ऑन ए लिमिटेड स्केल. सो लिमिटेड स्केल पे हम यूज़ करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. एग्जांपल्स हैं जिसमें सोलर एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम सी, उसमें आता है टाइडल एनर्जी जो टाइड से हासिल करते हैं हम, वेव एनर्जी वेव से मिलती हैं, और ओशियन थर्मल एनर्जी OTE ओशियन थर्मल एनर्जी मिलता है जो टेम्परेचर पे, एंड देन जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. दीज आर ऑल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. These sources have been tapped with the aid of advances in technology to meet our growing energy needs. ये जितना मतलब टेक्नोलॉजी जहाँ जितनी डेवलप होगी तो उसके साथ साथ ये भी डेवलप हो गए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो हम इनको कहते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दीज आर न्यू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हमने डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज देखे. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज. कौन सा इनमें से गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास. जितना हम यूज़ करते हैं और वो कितना हमें वर्क देगा, वो कितना ज़्यादा हमें वर्क देगा. नंबर 2 इज शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल. वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल. ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. हम आसानी से स्टोर जिसको कर पाएँ और ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. सेफ टू हैंडल एंड यूज़. ये हमें केयर से हैंडल करना होता है. फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट. वो डेंजरस है अगर हम उसमें लापरवाही करेंगे. इट शुड नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. इससे पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए. सो उससे हम जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो उससे हम कहते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. मोस्ट कॉमन एनर्जी सोर्स दैट वी यूज़ आर फ्यूअल्स. जो हम सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं वो है फ्यूअल्स. फ्यूअल्स में आता है वुड, कोल, पेट्रोलियम, CNG. फ्यूअल्स आर द सब्सटेंस दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी. फ्यूअल्स वो सब्सटेंस हैं जिनको हम जलाकर हमें मिलती हैं हीट एनर्जी. जैसे कोल हैं, वुड हैं, पेट्रोलियम हैं, इनको हम कहते हैं फ्यूअल्स. जैसे हम कहते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी तरह गुड फ्यूल भी हो सकता है. गुड फ्यूल. हाउ टू कंपेयर द फ्यूअल्स. टू कंपेयर फ्यूअल्स वी यूज़ 2 प्रॉपर्टीज़. हम इस्तेमाल करते हैं 2 प्रॉपर्टीज़ फ्यूअल्स को कंपेयर करने के लिए. एक है कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट फ्यूअल. कैलोरीफिक वैल्यू एंड इग्निशन टेम्परेचर. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूअल. It is the amount of heat energy produced by burning a unit mass of the fuel completely. इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी. ये इसका ऐसा यूनिट है. सो ये कहता है कैलोरीफिक वैल्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी हमें हीट एनर्जी मिले बाय बर्निंग ए यूनिट मास ऑफ द फ्यूल कंप्लीटली. फ्यूल जलाने से कितनी हीट एनर्जी हमें मिले उससे कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू. फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन 1 ग्राम ऑफ कोल इज बर्नड कंप्लीटली. जब हम 1 ग्राम कोल का जलाते हैं इट प्रोड्यूसेस 25,000 जूल्स और 25 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी. 1 ग्राम जब हम कोल जलाते हैं हमें मिलती हैं 25 किलो जूल्स और 25,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी. सो इसका हम कैलोरीफिक वैल्यू कह सकते हैं. कोल का कैलोरीफिक वैल्यू है 25 किलो जूल पर ग्राम. 25 किलो जूल पर ग्राम. सो इसी तरह कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल जो है वो है 50 किलो जूल पर ग्राम. 50 किलो जूल पर ग्राम. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं विच वन इज़ बेटर. सो क्योंकि इससे हमें ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ पेट्रोल.
सो वी कैन से दिस इज वन इज द बेटर फ्यूल। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं पेट्रोल इज द बेटर फ्यूल। क्यों? बिकॉज 1 ग्राम ऑफ पेट्रोल गिव्स more heat energy as compared to 1 gram of coal in terms of this calorific value। ये है approximate calorific value of different fuels का। इसमें हम अगर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो calorific value है वो है हाइड्रोजन का। सो हम कह सकते हैं जिसमें जितना ज़्यादा, जिस फ्यूल में जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उसमें उतना कम कैलोरिफिक वैल्यू होगा। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट उतना कम कैलोरिफिक वैल्यू, और जितना कम कार्बन उतना ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू। सो हाइड्रोजन जो है उसका सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू है। नंबर 2 है इग्निशन टेम्परेचर। लोवेस्ट और मिनिमम टेम्परेचर टू विच फ्यूल शुड बी हीटेड सो दैट इट कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। वो कम टेम्परेचर जिससे कोई सब्सटेंस या कोई फ्यूल आग पकड़े उससे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। So it is the lowest or minimum temperature. So ignition temperature of a good fuel should be, जो good fuel होगा उसका ignition temperature होना चाहिए neither too low nor too high, ना ही ज़्यादा कम न ज़्यादा high। अगर ये बहुत कम होगा तो fuel will catch fire easily which will be unsafe for use। अगर बहुत ज़्यादा होगा सो इट विल बी डिफिकल्ट टू बर्न दैट फ्यूल। सो इट शुड बी इन बिटवीन और मॉडरेट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, हाई कैलोरिफिक वैल्यू एंड प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। ये दो तो हमने पढ़े। हाई कैलोरिफिक वैल्यू होना चाहिए एक आइडियल फ्यूल का, और प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा हाई। सो इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल। ये सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। सो सेफ टू हैंडल एंड यूज़। नो पोल्यूशन एंड इट शुड नॉट लीव बिहाइंड एनी रेजिड्यूज। ये पोल्यूशन भी नहीं करना चाहिए और ये पीछे कुछ रेजिड्यू या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। एक गुड फ्यूल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बट there is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel। वो कोई फ्यूल नहीं है जिसको हम कह सकते हैं वो आइडियल फ्यूल हैं। बट वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें वो फ्यूल देखना चाहिए जिसमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स उस फ्यूल में प्रेजेंट हो, उससे हम कहेंगे तब गुड फ्यूल। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। ये है कुछ MCQs आंसर्स हैं वीडियो के एंड में। फर्स्ट, ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। नंबर 1 इज अ गुड फ्यूल इज़ वन दैट पॉजेसेस। हमने पढ़ा गुड फ्यूल कौन सा होता है? जिसका कैलोरिफिक वैल्यू हाई होता है और जिसका इग्निशन टेम्परेचर नीदर टू लो नॉर टू हाई। सो यू शुड सॉल्व बाय योर सेल्फ। नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? वुड तो नहीं है बिल्कुल, वुड कम्स अंडर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Number 3 is there are 4 fuels which all contain only carbon and hydrogen। 4 fuels है जिनमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन है। The fuel having highest calorific value will be the one which has highest calorific value। किस फ्यूल का होगा? मोर कार्बन होगा उसमें, लेस हाइड्रोजन, ज़्यादा हाइड्रोजन और कम कार्बन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर इट।